Hello students, here I'm gonna represent one more a point from our first chapter from information technology. My name is Professor Vibhavari Chawla. Here in this point I'm not going to give you any index, only we have to learn about the image map in our HTML5. An image map with an image with the multiple hyperlinks is called an image map. Okay, मतलब एक इमेज मैप मतलब जैसे इमेज ही रहेगी वहाँ पर कोई भी कोड नहीं रहेगा उस इमेज के ऊपर, लेकिन सो but whenever we take the pointer of our mouse on certain area, it will produce the one or many the hyperlink. मतलब एक हम इमेज रहेगी, एक प्रोग्राम रन होने के बाद उस इमेज के ऊपर हम जहाँ पर भी हमारा माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो वहाँ पर एक जो 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 हमारा पॉइंटर होता है उसका आइकॉन चेंज हो जाएगा. वो आइकॉन चेंज होने के बाद ही इट विल शो सम hyperlinks. An image map is created by marking certain regions or on an image clickable. These clickable regions are called hotspots. Image maps are of two types. First is the client side, second is server side. The tags used for the client side image mapping, because here in this syllabus of ours we are only going to learn about the client side image map. Server side image mapping is done by using the JavaScript, and here as we know we don't have JavaScript in our syllabus, so we only have to learn about client side image map. First, for this we must require to use the img tag. Okay, देखो इमेज मैप है मतलब वहाँ पर कोई तो इमेज होनी चाहिए, तो उसको अगर इंक्लूड करना है वी मस्ट रिक्वायर द img tag. It is used to insert an image onto the web page. To create the client-side image map, useMap attribute of the image is used with the value which is preceded with a hash symbol. देखो img tag तो हम लोग यूज़ करेंगे whenever we must require to insert the image in our page, but along with that अगर हम यूज़ कर रहे हैं client side image map, then we must require the use map. उसका जो attribute होगा वो यूज़ करना पड़ेगा. और use map ये यहाँ पर मैंने दिया है कैपिटल में, बट हम स्मॉल में भी यूज़ कर सकते हैं. यूज़ मैप इज़ इक्वल टू जो उसकी जो वैल्यू हमें देना है वो होगी while using the symbol hash. The useMap attribute acts as the pointer which indicates that the image is a client-side image map. See here, हमारे पास दो ऑप्शन है. We have the client-side image map and server-side image map. बट जो भी प्रोग्राम रहता है वहाँ पर अगर यूज़ मैप हम यूज़ करते हैं तो वो प्रोग्राम इंडिकेट करता है कि दिस प्रोग्राम इज़ फॉर यूजिंग द क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग. सेकेंड, एज वी डन विद द img टैग, अभी हमें इमेज को क्या करना है, मैप करना है. फॉर दैट रीज़न वी मस्ट रिक्वायर द मैप टैग. दिस मैप टैग इज़ अ container tag, so it should be opening of the map tag and closing of the map tag. It has only one attribute, that is the name. इसके साथ अगर map tag यूज़ कर रहे हैं हम, तो जैसे ही हम इनिशियलाइज करते हैं map tag open, we must require it's only one attribute, that is the name. The value of the name attribute is the value specified in the useMap attribute. useMap जो attribute है उसके अंदर जो value यूज़ किया है तो वही value हम map के लिए भी यूज़ करने वाले हैं. Now
एरिया, अभी इमेज हो गया, मैप हो गया, थर्ड जो है वो एरिया होगा। मतलब इमेज के ऊपर हम क्या करेंगे कि सेवरल शेप्स ड्रॉ करेंगे। सो वी कैन टेक द कोऑर्डिनेट्स एंड वी कैन फॉर्म द एरिया इन द नेम ऑफ हॉटस्पॉट. It defines the specific clickable regions. A given map element can contain multiple area element with it. Area is a singular tab and map is the paired one. जैसे मैंने बताया कि मैप टैग को ओपनिंग मैप लगेगा, क्लोजिंग मैप लगेगा, लेकिन एरिया और इमेज है वो क्या है, सिंगुलर टैग. Now we can learn more about the attributes of the area tag. Here, area tag अगर यूज़ कर रहे हो, you must require the 4 attributes. First, वो क्या है, name of the attribute is href. That defines the URL to which the clickable region within the image map navigates. एक लिंक देना है हमें, URL देना है, तो वो देने के लिए we must require the attribute. वो कैसे रहता है, वो करेंगे the hyperlink reference. ओके, उसे क्या बोलेंगे, href. देन शेप डिफाइन करना है, तो उसके लिए इट कैन बी द वैल्यू रेक्ट मीन्स रेक्टेंगल, सर्कल और द अ पॉलीगॉन, लेकिन उसमें से हम सिर्फ ट्रायंगल वाला शेप लेंगे. थर्ड जो एट्रीब्यूट है उसका नाम है कोऑर्ड्स. मतलब क्या होंगे, वो कोऑर्डिनेट रहेंगे जो भी शेप के हम लेंगे पॉइंट्स. ओके, उन हर एक पॉइंट्स के वो रहेंगे कोऑर्डिनेट्स. जैसे नहीं क्या रहता है, एक पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, एक रहता है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा रहता है वाई कोऑर्डिनेट. इन दैट सेम मैनर. फोर्थ जो एट्रीब्यूट होगा एरिया के लिए वो है ALT. वो क्या करेगा, स्पेसिफाइज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द clickable area. It is the alternative text to the clickable region. अगर हम एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर वो पॉइंटर लेके जाते हैं, तो वो जो रीजन है उसके लिए मोर इन्फॉर्मेशन अगर हमें इंक्लूड करना है, तो वो कौन असाइन कर सकते हैं, while using the ALT tag. सी हियर, ये एक इमेज है, इसके बारे में मैंने क्या किया है, आगे कैसे करना है इमेज मैपिंग, ये मैं बताऊंगी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्टेप्स टू create the client side image mapping. First, open the image in a paint application of the computer. तुम्हारे कंप्यूटर में जो भी इमेज रहेगी या फिर कोई फ़ोटो रह सकती है, उस फ़ोटो को तुम्हें क्या करना है, पेंट में ओपन करना है. मतलब जहाँ पर वो इमेज रहेगी उस फोल्डर के यहाँ पर जाओ, राइट क्लिक एंड ओपन विथ अ पेंट एप्लीकेशन. और एल्स ऐसा भी कर सकते हो कि पहले पेंट एप्लीकेशन ओपन करो और वहाँ पर सेकंड ऑप्शन रहता है जहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ओपन रहता है. ओपन में जाके एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से, एक फ़ोल्डर से तुम वो इमेज पेंट में भी ओपन कर सकते हो. ऐसे 2 वेज़ है. ड्रॉ द शेप्स ऑन द इमेज. अभी जैसे ही तुम्हारी इमेज पेंट में ओपन हो जाती है, तुमने जैसे मैंने इस इमेज के ऊपर दिखाया है, आई हैव ड्रॉन द 3 शेप्स. फर्स्ट इज सर्कल, रेक्टेंगल एंड थर्ड वन इज ट्रायंगल. ऐसे शेप्स तुमको क्या करना है, ड्रॉ करना है. Note down the coordinates of each shape drawn. जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे हर एक शेप के, वो तुम्हें नोट डाउन करके लेना है. Each point of the vertex of image has 2 coordinates. हर एक पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं. जैसे मैंने बताया, एक होता है x कोऑर्डिनेट, एक होता है y कोऑर्डिनेट. Such as in this figure, we have to draw this shapes circle, rectangle and polygon. and लेकिन polygon है मतलब क्या, उसके बहुत सारे साइड्स हो सकते हैं कि जैसे पेंटागन है, पेंटागन, हेक्सागन. लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ट्रायंगल ले रहे हैं कि जो एक इमेज के सिर्फ 3 साइड्स होंगे. इन अ पेंट एंड टेक इट्स कोऑर्डिनेट्स. हाउ टू
कैलकुलेट द सर्कल कोऑर्डिनेट्स. सर्कल अगर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे हम काउंट करेंगे. फर्स्ट, सो प्लेस द पॉइंटर एट द सेंटर, टेक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन. जो हमारा जो माउस पॉइंटर है वो सेंटर में लेके उसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या करना है, नोट डाउन करके लेना है जो ओरिजिन है सर्कल का. फॉर एग्जांपल जैसे O 300 एंड 500. 300 क्या है, इट इज़ द x coordinate of the O origin and 500 is the y coordinate of the origin. Now then place the pointer on any point on the perimeter of the circle. मतलब उसके बाद क्या करना है, पेरीमीटर जो सर्कल का है, सर्कमफरेंस जो है उसके ऊपर का कोई भी एक पॉइंट पे तुम्हें पॉइंटर वहाँ पर लेके जाके स्टक करना है एंड यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट एंड से दैट पॉइंट इज़ P. तो P के दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमको, एक है 400, एक है 600. टू इंक्लूड द कोऑर्डिनेट्स और द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल वी रिक्वायर 3 पॉइंट्स. लेकिन जैसे ही हमारा प्रोग्राम है, ये इस प्रोग्राम के अंदर हमको कि ये चारों पॉइंट्स मतलब चारों जो मतलब 2 पॉइंट के जो 4 कोऑर्डिनेट्स है वो इंक्लूड नहीं करना है. हमें सिर्फ यहाँ पर सिर्फ क्या चाहिए, 3 कॉर्ड्स चाहिए. फर्स्ट जो है उसमें आएगा द रेडियस ऑफ द सर्कल. सेकेंड में आएंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P, मतलब जो हमारा ओरिजिन है उसके दोनों जो क्या है उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स नहीं आएंगे, सिर्फ जो P है उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स आएंगे, बट फर्स्ट वाला जो है वो रेडियस रहेगा. तो ऐसे देखा जाए तो 3 ही क्या आएंगे, एक रेडियस आएगा और 2 कोऑर्डिनेट्स आएंगे. वो भी कैसे देखो, हमें to calculate the radius of the circle we have to do the subtraction operation in between the first x coordinate of the P and minus the x coordinate of the O. 400 minus 300 वो हो गया, कितना हो गया, it becomes 100. तो 100 ये हो गई रेडियस फ्रॉम द ओरिजिन टू द क्या होता है पेरीमीटर, मतलब ओरिजिन से जो पेरीमीटर है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग द सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन ऑफ इन बिटवीन द x coordinates of the origin minus the any point on the perimeter. See here, एक सर्कल हमें ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, we have to take the coordinates of the circle or of the origin. अभी आप लोग बोलोगे कि सेंटर जो एग्जैक्ट लेना है तो वो कैसे करें. इधर हमें पूरा मेजर नहीं करना है कि एग्जैक्टली कहाँ पर उसका ओरिजिन होगा. आप लोगों को फॉर अप्रॉक्सीमेट जहाँ पर नियर बाय लगता है कि ये सेंटर होना चाहिए वहाँ पर का एक पॉइंट आप ओरिजिन के लिए कंसिडर कर सकते हो. देन सेकंड, कोई भी एक पॉइंट आपको लेना है ऑन द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. देन जो कोऑर्डिनेट्स लेना है उसको अगर ये कैलकुलेट करना है, इसे बोलते हैं रेडियस फ्रॉम O टू P. वो कैलकुलेट करने के लिए जो रेडियस है ये दोनों पॉइंट की 400 माइनस 300, दैट मीन्स आई हैव ओनली टेकन द x कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ द पॉइंट्स. उसे सब्सट्रैक्शन करके जो आंसर आएगा वही होगा योर 3 कोऑर्डिनेट्स. सिंटैक्स कैसे होना चाहिए देखो, अगर सर्कल का शेप तुम अपने इमेज के लिए इंसर्ट कर रहे हो तो एरिया, ये एक टैग रहेगा, उसका जो एट्रीब्यूट आएगा उसके साथ उसका नाम क्या है href इज इक्वल टू URL देना है, एक सर्टन URL तुम दे सकते हो, स्पेस दे के शेप इज इक्वल टू सर्कल्स. सर्कल के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो तुमको जैसे आगे मैंने मेंशन किया है वो क्या है, कोऑर्ड्स इज इक्वल टू 100 ये उसकी रेडियस और 400 एंड 600 ये सिर्फ होंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस. ये आप लोग चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने जो पॉइंट्स लिए हैं तो सेम आप लोगों के भी ये पॉइंट्स रहेंगे, हर एक के पॉइंट अलग अलग होंगे. नाउ
So we will start about the rectangle. How to calculate the rect chords. Consider the 2 points of the diagonal of the rectangle. We didn't draw diagonal in our diagram in a paint, but we consider the points. यहाँ पर 2 ही आएंगे because rectangle के 4 points आ जाते हैं ABCD, but we only have to calculate the points on the diagonal of your rectangle. जैसे इधर मैंने बताया. सिंटैक्स कैसे आएगा देखो. अगर ये एक रेक्टेंगल है तो उसके 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स लिए हैं ऑन द डायगोनल. एक है पॉइंट x 300 400, ये उसके कोऑर्डिनेट्स है, एंड पॉइंट y उसके 100 एंड 200 कोऑर्डिनेट्स है. तो अगर मुझे यही रेक्टेंगल का शेप अपने प्रोग्राम के लिए इंक्लूड करना है तो आई विल गो विद द सिंटैक्स एरिया href इज इक्वल टू page1.html. यहाँ पर आप कोई भी साइट का URL इंक्लूड कर सकते हैं जो हम आगे जाके देखेंगे. सो व्हेनेवर वी विल स्टार्ट विद आवर एक्चुअल प्रोग्राम. देन शेप इज इक्वल टू रेक्टेंगल शेप का नाम है, लेकिन जैसे ही हम जो प्रोग्राम रन करेंगे उसके अंदर वी ओनली हैव टू यूज़ द वर्ड रेक्टेंगल, पूरा वर्ड नहीं आएगा. देन स्पेस along with the third attribute of the area we are going to use is coords. जैसे सिर्फ 2 पॉइंट्स के 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए, चारों के चारों हमें यहाँ पर मेंशन करना है 300 400 100 and 200. Now we are going to start with how to calculate the polychords. अभी क्या करना है, पॉलीगॉन अगर ड्रॉ करना है तो, but I have only drawn the triangle, so consider the 3 points of the triangle. Polygon means it would have multiple sides, maybe the pentagon, hexagon, etc. अगर triangle है तो triangle के 3 points मैंने consider किए हैं A, B, C point. See here, ये triangle है. A point के coordinates है 300 and 400, B के 100 and 200, C के 150 and 250. सिंटैक्स क्या होगा उसका, एरिया href कोई भी URL ले सकते हो, और पर्टिकुलर जो फाइल है तुम्हारे यहाँ पर ऑलरेडी सेव है बट उसका एक्सटेंशन .html है, तो सेकेंड जो फाइल कोई भी रहेगी उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं. शेप है, शेप का नाम क्या है, पॉली. यहाँ पर पॉलीगॉन पूरा यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ इधर यूज़ क्या करोगे, पॉली. नाउ यूज़ द कोऑर्ड्स. अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, तो 3 पॉइंट्स के तीनों पॉइंट के 6 कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा. ओके. नाउ इमेज मैप प्रोग्राम. नाउ the many points we learned up till now we are now going to use in this program. जो भी पॉइंट हम लोगों ने सीखा है अभी हम लोगों को इसमें यूज़ करना है. वो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, now you have to take the basic structure of the HTML. HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हमें इंक्लूड करना है. HTML open, HTML close, then the head section should be there along with the title tag. Then we have to start with the body section. हम यहाँ से start करते हैं. We only give the title for this HTML program. For that I am using h1 align is equal to center, and I have write down there example of the image map. Okay, जो आएगा center में. Now image map है तो first of all we have to insert the image in our program. वो कैसे करोगे? While using the img tag. Okay, लेकिन img tag से source जो इमेज का हमें इंक्लूड करना है वो आएगा उसका नाम. जैसे मैंने यहाँ पर नाम दिया है, मेरी जो इमेज में इंक्लूड करने जा रही हूँ उसका नाम क्या है, पीसफुल ट्रॉपिकल आइलैंड .jpg भी चाहिए बिकॉज वो रिप्रेजेंट करता है कि ये फाइल इमेज फाइल है. ये फाइल इंक्लूड करके हो गया. देन टू
to represent the information that we are going to use the client side image map, हमें यहाँ पर use map ये और एक जो img का attribute we learned we have to write. इसकी इंफॉर्मेशन क्या है उसका नाम देना पड़ेगा, कोई भी नाम दे सकते हो, बट यूज़ मैप अगर यूज़ किया है तो यू शुड कम विद द सिंबल हैश इमेज मैप. ये मैंने एक नाम दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन सिंबल आना चाहिए यूज़ मैप के बाद. ALT इसकी जो इमेज है उसकी इंफॉर्मेशन अगर हमें डालना है तो ALT से डाल सकते हैं. मैंने इसकी जो इंफॉर्मेशन है ये और एक मेरी इमेज फाइल है इससे रिप्रेजेंट किया है जिसका नाम है 123.jpg. अगर आप लोगों को टेक्स्ट रिप्रेजेंट करना है तो तब भी आप वहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं. ओके, नाउ इमेज मैप का जो प्रोग्राम है इसमें img तो टैग यूज़ करके हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मैप टैग. मैप टैग यूज़ करने के लिए जैसे मैंने बोला था कि जो यूज़ मैप के लिए जो नाम यूज़ किया होगा वही नाम आपको क्या है मैप नेम के लिए यूज़ करना पड़ेगा. मैप ये एट्रीब्यूट है, पेयर्ड एट्रीब्यूट है, बट उसके साथ एक एट्रीब्यूट आएगा ही जो है नेम इज़ इक्वल टू. यहाँ पर सिंबल हैश यूज़ नहीं करना है, ओनली यूज़ मैप के लिए जो टर्म यूज़ किया है तो वही आएगा मैप नेम के लिए. जैसे मैंने यूज़ किया था इमेज मैप, मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है मैप नेम इज़ इक्वल टू इमेज मैप. ओके, देन उसके नीचे आई हैव बीन क्लोज द मैप टैग, बट मीनवाइल आई हैव टू included the three areas in the shape rectangle, circle and the polygon, but here I have taken the triangle for that. मैंने 3 shapes लिए हैं, rectangle, सर्कल एंड पॉलीगॉन. तो इसके लिए जो एरिया मैंने एलोकेट किया है, जैसे मेरा जो माउस पॉइंटर है पर्टिकुलर रीजन पे ऊपर जाएगा, सो दैट विल एंड जब मैं वहाँ पर जाके क्या करूँगी, जस्ट एक की पे एंटर करूँगी और जो माउस पॉइंटर है कि वो क्लिक करूँगी तो एक पर्टिकुलर URL ऊपर हो जाना चाहिए. देखो एरिया href इज़ इक्वल टू http://www.google.com, ये एक URL है. देन शेप मैंने इसके लिए क्या ड्रॉ किया था, रेक्टेंगल एंड कोऑर्ड्स. रेक्टेंगल है तो 4 रहेंगे बिकॉज हम 4 पॉइंट्स आते हैं रेक्टेंगल के, लेकिन हम सिर्फ डायगोनल के ऊपर के 2 पॉइंट लेंगे जिसके 4 कोऑर्डिनेट्स आएंगे. वो क्या है वो इधर मेंशन किए हैं. ALT ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शो करता है कि जो एरिया हमने रेक्टेंगल के लिए चूज़ किया है वहाँ पर साइट क्या है, द गूगल साइट. नाउ एरिया सेकंड एरिया href इज़ इक्वल टू index.html. ये मेरी और एक फ़ाइल है जो रन होती है जिसका सेपरेट एक क्या है कोडिंग है. आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, सेपरेट जो कोडिंग वाली जो फाइल है वो आपको इंक्लूड करके उसका नाम डालना है. शेप मैंने क्या डिफ़ाइन किया है, सर्कल. सर्कल अगर है तो उसके क्या आएंगे 3 आते हैं कोऑर्डिनेट्स कि उसमें से फर्स्ट वाला उसका रेडियस होगा. रेडियस मतलब सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन इन बिटवीन the x coordinate of the p minus x coordinate of the origin. ये आपको करना है. और लास्ट के जो 2 कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो आते हैं जो पॉइंट आपने लिया था पेरीमीटर पे का, उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स आएंगे, द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑल्सो. ALT मतलब इसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या शो करता है कि ये आप अपना लोकल पेज है. एरिया href is equal to http. Now we're going to execute this program. ये प्रोग्राम हो गया, सारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी आगे इंक्लूड करके. ओके, पॉलीगॉन के भी हो गए जो मेरी शायद आवाज़ क्लियर नहीं आई होगी. सो आप इसके पीछे का जो प्रोग्राम है वो जाके देख सकते हो. ओके, आउटपुट जस्ट आफ्टर द एग्जीक्यूशन
जैसे ही इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होने के बाद स्क्रीन कैसे आती है, देखो स्क्रीन ऐसे आएगी। यहाँ पर सिर्फ आएगा टाइटल, जो मैंने दिया था वो क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इमेज मैप, और जो मेरी इमेज है वो आ चुकी है। ओके, अभी जैसे ही मेरा जो माउस पॉइंटर है मैं ये इमेज के ऊपर लेके जाती हूँ, तो देखो मेरा जो अगर कोई रीजन होगा जहाँ पर मैंने ये क्या ड्रॉ किया था कि रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, उस एरिया के अंदर जैसे ही मैं मेरा जो माउस पॉइंटर है वो लेके जाती हूँ, तो जो पॉइंटर है वो चेंज हो जाके क्या हो जाता है, एक जैसे सिंबल होता है टू हैंड का सिंबल आ जाएगा वहाँ पर। मतलब वहाँ पर कोई तो रीजन है जहाँ पर मैंने एक क्लिक करने के बाद URL ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने भी ट्राई करना है। इट इज़ चेंजिंग द सिंबल और applicable the change in symbol in the 3 regions, सर्कल, रेक्टेंगल एंड पॉलीगॉन ऑल्सो। ये तीनों के लिए जहाँ जहाँ तुमने शेप्स ड्रॉ किए होंगे उसके क्या माउंट किए हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हमने किए हैं माउंट, तो इसीलिए इमेज के ऊपर के जो जो कोऑर्डिनेट्स है, तो वो जो एरिया है वहाँ पर आप जब जाओगे पॉइंटर लेके, तो वो पॉइंटर का सिंबल चेंज हो जाएगा। सो वेन एवर यू पॉइंट योर pointer on the picture, you got this symbol. When click on the hotspot area, it shows the shapes for a while like this. जैसे ही आप पर्टिकुलर जो एरिया है जहाँ पर आपका सिंबल चेंज हो जाता है, वहाँ पर जैसे ही आप क्या करते हो, वो उसे क्या बोलते हैं, द हॉटस्पॉट। उधर आप जाओगे, जैसे मैंने यहाँ पर मैं गई थी जहाँ पर मेरा क्या है, रेक्टेंगल का शेप है, तो फॉर अ वाइल, एक जस्ट सेकेंड के लिए वो उसका शेप क्या करता है। अभी तक जैसे आपने देखा था इमेज के ऊपर कोई भी शेप्स मैंने ड्रॉ करके नहीं रखा था, आप लोगों ने भी ड्रॉ नहीं करना है। जस्ट यू हैव टू गो इन द पेंट एंड ओनली टू माउंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द शेप के सिर्फ कोऑर्डिनेट करना है। लेकिन जैसे ही आप एक रीजन के ऊपर पॉइंटर जाने के बाद ये माउंट करते हो के to click on that particular the hotspot, थोड़े सेकंड के लिए इमेज वहाँ पर appear हो जाती है। then and when I click this on a circle shape hotspot, तो क्या होगा, देखो एक लोकल फाइल है मेरी जो ऑलरेडी मेरी जो मशीन के ऊपर थी, उसका नाम क्या था, index.html। इसमें मैंने सिर्फ क्या किया है, देखो I have taken the 2 statements. The first one it is included in a while using the h1 tag open and h1 tag close। इसके लिए मैंने क्या किया, कलर असाइन किया है, आप लोग कलर असाइन कर सकते हो। एंड लास्ट में मैंने क्या किया है, और एक स्टेटमेंट इंक्लूड किया है जो इंडिकेट करता है स्टे एट होम एंड फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग। ये मैंने जो सबसे लोवेस्ट जो टैग रहता है उसके थ्रू किया है। ये आप लोगों को करना है प्रोग्राम, उसके बाद ही इसे आप इंक्लूड कर सकते हैं इन द नेम ऑफ लोकल फाइल फ्रॉम योर मशीन। एंड व्हेन आई क्लिक ऑन द रेक्टेंगल शेप द हॉटस्पॉट, तो जैसे मैंने मेंशन किया था जो मेरा इमेज में आपका जो प्रोग्राम था, वहाँ पर मैंने क्या किया है, रेक्टेंगल का शेप पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो इट विल ओपन द URL particular that representing the www.google.com। थर्ड जो मेरा the hotspot area that indicating the shape वो है ट्रायंगल इंडिकेट किया, तो एक साइट का नाम आया था www.महाराष्ट्रबोर्ड.co.in। तो आपको भी कि ऐसी साइट इंक्लूड करना है, और कोई साइट इंक्लूड कर सकते हो तब भी चलेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग द इमेज मैप। आपको फर्स्ट थिंग क्या करना है, choose the image, then go for the paint application in your machine। उधर जाओ, open that
इमेज वाइल यूजिंग द पेंट में जाके ओपन करना है। इमेज जैसे ही आ जाएगी आपको वहाँ पर 3 शेप्स ड्रॉ करना है, सर्कल, देन रेक्टेंगल एंड द ट्रायंगल। उसके कोऑर्डिनेट्स लेना है, आपको नोट करके रखना है। सर्कल के 3 ही आएंगे, एक आएगा रेडियस जो होगा सब्सट्रैक्शन इन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑफ द ओरिजिन माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द पॉइंट। देन लास्ट के जो 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आएंगे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पेरीमीटर ऑन द सर्कल। रेक्टेंगल के 2 ही पॉइंट आएंगे, द पॉइंट्स ऑन द डायगोनल, तो उसके 4 कोऑर्डिनेट्स आएंगे। और थर्ड जो शेप है वो है ट्रायंगल का। ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, 3 पॉइंट्स के 6 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये आपको मैप करना है। ओके, थैंक यू।